everyone, 20 questions in 20 minutes. So this is our series where we target these 20 objective type questions in just 20 minutes, right? So today we are going to discuss the most expected, मतलब जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके continuity and derivative से, वो हम कवर करने वाले हैं. तो fasten your seat belts because आप करेंगे आंसर इन्हें one by one and then don't forget to mention your final score in the comment box below. Okay? Now I believe most of you know this कि हमारे जो 20 questions objective type आने वाले हैं उसमें 10 are going to be the multiple choice questions जिसमें मिलेंगी 4 options, 5 fill in the blanks type and 5 very short answer type. तो चलिए let's roll. Alright, here's the first question and you get your 10 seconds to think about that. If you have done the basic theory with me, तो उसमें यार continuity की one shot में आपसे बात करी थी कि discuss जब भी एक trigonometric function होता है, it is always continuous on its domain. अब sin to x की domain जो है, it is everywhere. Minus there is a constant function यानी कि fx is going to be continuous everywhere. Okay, तो in specifically 0 और pi पे तो होगी ही, बस और कुछ नहीं करना था. The question is killed, dead, slaughtered. +1 to each one of you who did this question. Alright, moving ahead, let's talk of question number 2 now. Okay, so what are we going to do? We have to check कि at x equal to 3/2 is the function continuous, discontinuous, differentiable or non-zero. सुनो, सबसे पहली बात. See, the first thing that you check it, x equal to 3/2 अगर हमने यहाँ पे डाला तो क्या हो जाएगा यहाँ पे गॉस? समझ रहे हो? यहाँ पे आपका फॉर्मेट आ रहा है 0/0. नाउ टेक्निकली तो ये वैसे ही डिसकंटिन्यूअस हो जाता है. फिर भी इफ यू वांट टू स्प्लिट दिस सिंस इट्स अ मॉड फंक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा mod 2x. नाउ इफ योर x, देखो अगर 2x - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 दिस विल बी 2x - 3 अपॉन 2x - 3 and if x is less than 3/2 it will become negative of 2x - 3 upon 2x - 3 यानी कि हो जाएगा -1. Now for more than 3/2 and less than 3/2 the values are different. तो सीधी सी बात है boss that the function will be discontinuous. That's it. Okay, let's talk of question number 3 now and see इसको करते हैं कैसे kill. Alright, पढ़ा question. Now look at this. You have to find if x is measured in degrees then what is d/dx. सुनो इसे constant समझ के zero मत कर देना. You know that 180 degrees is equal to pi radians यानी कि x डिग्री हो जाएगा आपका pi upon 180 into x. बस यही करना है आपने. So that means you have to find the derivative of cos of pi x upon 180. ठीक है जी, दिस इज गोइंग टू बिकम माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 एंड द डेरिवेटिव फॉर दिस विल बी पाई अपॉन 180. नाउ एज यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे साइन ऑफ पाई एक्स बाय 180 तो बन जाएगा साइन एक्स डिग्रीज एंड दिस इज माइनस पाई अपॉन 180. तो ये कहाँ पर है आंसर? It is right here. ये actually सारी जगह आपका डिग्री होना चाहिए था. So that's it. Our C is the desired answer. The question is cut. Please make a note. Okay, time for question number 4. Let's see how many of you get this one right. इस सीरीज में ना मैंने आपके हर टाइप का क्वेश्चन डाला है, चाहे हो वो छोटा छोटा या हो वो मोटा मोटा. बेसिकली जितने भी तरीके से ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं इन दिस चैप्टर. चलो, सो दिस इज व्हाट आई हैव. कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0 यू हैव टू फाइंड फॉर k यानी इट इज सिंपल. ये डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, इट्स अ 1 मार्कर. आई एम डायरेक्टली just telling you कि ऐसे होता है, right? I'm sure you know it.
3/5 यार जस्ट अ कांस्टेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू नो यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई डिवाइड विद पाई एक्स, ठीक है जी, ये बन जाएगा 1, हमारे पास आ जाएगा 3π/5 इज इक्वल टू 2k, यानी कि k becomes 3π/10. B for bingo is the answer. Please make a note. All right, क्वेश्चन नंबर 5. लेकिन उस पे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वरना हमारे महा रिविजन में बहुत कुछ मिस कर जाओगे. किया? चलो, नाउ लेट्स अटेम्प्ट द क्वेश्चन. All right, points of discontinuity of tan x. Now if you look at this, tan x आपका क्या हो जाता है, sin x by cos x. You know that it is not even defined when cos x is 0. अब cos x 0 कब होता है, at odd multiples of 90 degree या odd multiples of π/2. यानी जब फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो continuous कैसे होगा बॉस. That means this should be the correct answer. That's it. The question is done. Okay, time for question number 6. Let's see how many of you can fix this. Time for infinite derivatives. तो यार यहाँ पे आपको दिख रहा होगा that the pattern is getting repeated. देखो, अगर मैं it is infinite, so even if I remove 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, it is still e raised to power y. समझ रहे हो? That means इसको आप बोल सकते हो e raised to power y plus x, क्योंकि यहां से the pattern starts repeating again, है ना. That's it. Now just take log on both sides. So this is what I'm getting. अब तो यार differentiate मतलब कर ही लोगे, है ना. बाएं हाथ का खेल हो गया. This is what I'll get. Derivative of y को मैं y dash लिख सकती हूँ plus 1. Now only the calculations are left guys. So 1 minus x whole upon x, ये कहाँ है, ये यहाँ है. That's it. The question is done. मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर आ रहा है तो अब तक क्यों बैठे हो गाइज? हिट द लाइक बटन, मेक श्योर यू डू दैट. ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे. लेट्स सी हाउ वी कैन किल दिस वन नाउ. Okay, so now look at question number 7. You have been given find the value of a for which the function is continuous for all x. ठीक है जी, अब continuous for all x. Let me take an example of let's say 2 ले लेते हैं. So it will be continuous at 2 also. Now for less than 2, ठीक है, for your LHL this is the function. अब for your RHL, guys, I know ये function is greater than 0, ठीक है, but if there is no other function provided, that means positive side पे, तो इसका मतलब 2 के लिए भी, क्योंकि there is not another function which is saying कि 0 से 2 it's different and 2 के beyond it's different, so I can take this one only. So I can take a square x minus 1. Let's substitute x as 2, तो ये बन जाएगा आपका 2a plus 3 is equal to, this will be 2a square minus 1, यानी कि 2a square minus 2a minus 4 is 0. तो इसको चलो सॉल्व करें. a square minus a minus 2 is 0. क्या आएगा आपका आंसर? I am sure you all are getting a equal to minus 1 and 2, which is right here. So C is the required answer. Please make a note. Okay, time for question number 8. Don't be late in solving this one. चलो solve करते हैं. Alright, if sine of x plus y is equal to log of x plus y, then what is dy by dx equal to? ठीक है जी, तो आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लो. दिस विल बी cos of x plus y. डोंट फॉरगेट द चेन रूल. x हो जाएगा 1 प्लस dy by dx को मैं y डैश भी लिख सकती हूँ फॉर माई कन्वीनियंस. ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस वाई. एंड डोंट फॉरगेट इसका डेरिवेटिव विच विल बी 1 प्लस y डैश. ओके गाइज, अब क्या करना है? कुछ नहीं करना. I know I can write 1 plus y dash, I can take common, and this will be cos of x plus y minus 1 upon x plus y is a 0.
अब या तो ये इक्वल टू 0 है या ये इक्वल टू 0 है। लुक एट द ऑप्शंस, दैट मीन्स वी आर अज्यूमिंग दैट दिस कांट बी इक्वल टू 0, तो यानी सीधा सीधा योर y डैश इज इक्वल टू -1 एंड द क्वेश्चन इज डन। प्लीज मेक अ नोट। Okay, time for question number 9. Tin, 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 tin. So it's time for your 20 marks in 20 minutes. समझ रहे हो ना, 20 सवाल हमने टारगेट करने हैं 20 मिनट के अंदर। इसीलिए रिकॉर्डेड वीडियो है ताकि आप लाइव में जाके भावनाओं में ना बह जाओ एंड इन 20 क्वेश्चंस को 20 से 25 मिनट्स के अंदर ही किल कर दो। All right. So again the function is given to be continuous at x equal to 1, then what is value of k? चलिए करते हैं value of k, that means limit x tending to 1 log x upon x minus 1 is equal to k। ठीक है जी, अगर आपको log की, अगर आपको limit की प्रॉपर्टी पता है, कौन सी वाली, limit x tending to 0 log of 1 plus x अपॉन x इज अ 1, ठीक है, तो बहुत आराम से आप ये कर सकते हो। जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ एडजस्टमेंट, ये x के साथ ना -1 + 1 कर दो, राइट, एंड यू नो ये x टेंड्स टू 1 है तो x - 1 विल टेंड टू 0, राइट, यही वाला पैटर्न आ गया। इट विल बी, क्या है ये देखो, 1 प्लस, सो 1 प्लस x - 1 अपॉन द सेम x - 1 एंड x - 1 टेंड्स टू 0, यानी कि आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है आपका सीधा सीधा 1, सो k शुड बी इक्वल टू 1 एंड द क्वेश्चन इज डन। वैसे एक बात बताती हूँ, इफ यू गेट अ 1 मार्कर, ठीक है, 2 मार्कर है तो प्रोसीजर बताना पड़ेगा, 1 मार्कर है तो यू कैन इवन डायरेक्टली राइट द आंसर बिकॉज CBSE आपका फाइनल आंसर ही चेक करने वाली है, तो थोड़ी सी चीटिंग करके एल-ऑर्बिटल रूल लगा दो, है ना, इजी है। ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 1/x अपॉन 1 लिमिट x टेंडिंग टू 1, बस यहाँ से भी आ गया k इक्वल टू 1। कुछ भी कर लो यार, 1 मार्कर में फर्क नहीं पड़ता, बट यस फॉर 2 मार्कर एंड अबव स्टिक टू द मेथड इन योर सिलेबस। प्लीज मेक अ नोट। ओके, टाइम फॉर हाफ टाइम, क्वेश्चन नंबर 10, बट उससे पहले मुझे चाहिए लाइक, अभी के अभी, इतना तो कर ही सकते हो बॉस। Come on, let's read this. Okay, so if you're given f of x, g of x, then g dash x क्या होता है? Let's see. g of x सबसे पहले तो आपका बन जाएगा f of x upon 1 plus x, ठीक है जी। That means wherever I have x, उसको रिप्लेस करना है पूरे इसके साथ, so it will be x upon 1 plus x upon 1 plus x upon 1 plus x. If you take the LCM, this is going to be x upon 1 plus x, and यार वही चीज़ है यहाँ पे भी, but here it will be 1 plus x, so 2x plus 1, okay, तो यानी आपके पास gx बच जाता है x upon 2x plus 1. That's it. Now just apply your quotient rule and kill the question, and जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है यही होगा आपका आंसर। आई एम श्योर कर लिया होगा, है ना, प्लीज मेक अ नोट। ओके, टाइम फॉर क्वेश्चन 11। चलो लेट्स सी हाउ वी कैन किल दिस वन। ऑलराइट, y is equal to tan inverse of this, then the value of dy by dx। इसको थोड़ा सा सुलझा लें पहले, that means let's just simplify this a bit। क्या हो जाएगा, I can write sin x को as 1 minus cos of pi by 2 minus x, right, and this will be 1 plus cos of pi by 2 minus x again। क्यों किया मैंने ऐसे से, you can apply any other method also, but then this is the quickest। okay, so 1 minus cos theta बन जाता है आपका 2 sin square theta by 2, and 1 plus cos will become 2 cos square this one, correct। so this will become tan inverse of, या सब कुछ, this will become tan of pi by 4, मतलब tan खाली डायरेक्ट लिख देती हूँ, समझ आ ही गया होगा, करेक्ट। so your final answer if I have to find the derivative इसका will be -half। that's it, the question is KDS, killed, dead, slaughtered।
It's time for question number 12. Read the question carefully. Okay, so now it is log of log x. ठीक है, डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करते हैं. सी whenever you are asked at a specific value, तो समझ जाओ पहले you have to find the simple derivative. ठीक है जी. So what am I going to get? Derivative with respect to this first, which will be 1 of log x. And derivative of log x will be 1 by x. That's it. So f dash e क्या हो जाएगा आपका? If I put x as e, 1 upon log e to the base e will be 1 and यहाँ आ जाएगा 1 by e, यानी कि e inverse a for awesome, ऐसे लिखना चाहिए ना, a for awesome is the desired answer. Please make a note. चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं एंड सोचते हैं इसको कैसे किल करें. अब आइडियली तो आई नो आप सोच रहे होंगे कि इन क्वेश्चंस में तो ऑप्शंस होने ही नहीं चाहिए थे. चलिए दे दिए हैं, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करो. राइट, डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्यूब एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन क्यूब एक्स, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज क्या हो जाएगा आपका. सबसे पहले देखो इसको y ले लो, इसको लेट्स से z ले लो, so that means I have to get dy by dz. तो dy by dx स्टार्ट करेंगे 3 cos square x into minus sin x, सिंपल चेन रूल, अपॉन 3 sin square x into cos x. ओके, सो सब कुछ मुझे लग रहा है कट सा गया है यहाँ पे, एंड हमारे पास क्या आ गया है, माइनस कॉट एक्स. एब्सोल्युटली ए फॉर ऑसम इज द आंसर. यू गॉट दिस. देखो अगर मैं इसकी ऑप्शंस हटा दूं तब भी यू विल गेट द सेम थिंग, है ना. टाइम फॉर क्वेश्चन 14. किसी ने नहीं किया तो 14 साल का वनवास मिलने वाला है तुम्हें. अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रॉमिस. क्वेश्चन सॉल्व करो. Okay, y is given to be this, then dy by dx at this value. तो फिर से यार सिंपल डिफ्रेंशिएट करना है, उठा के x को डालना है, लेकिन फर्स्ट यू हैव टू गेट द डेरिवेटिव. ठीक है, बाय हाथ से करें. सो द डेरिवेटिव ऑफ log is 1 upon sin of x square. राइट, इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, cos of x square, एंड इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, 2x. ठीक है जी, यानी क्या बन गया है हमारे पास, 2x cot of x square. नाउ x equal to root of pi by 2 will be twice of root of pi by 2, और ये x square देखो क्या हो जाएगा, pi by 4, तो यानी हो गया 1. रूट पाई कहाँ है, रूट पाई यहाँ है. That's it. The question is done. Time for 15. Derivative of log mod x. मतलब अब तो मैं हट ही नहीं रही, आपको डायरेक्टली बताना है. A lot of you might think कि इसको 1 by mod x लिख दें. कोई ज़रूरत नहीं है ना. We know कि इंटीग्रल ऑफ 1 by x को हम लिखते हैं log of mod x. देखो mod साइन इसलिए लगता है because the domain is positive numbers for your log, है ना. तो बस that's it, that's all what we need. यही वाला मार्क कर देना था. तो don't get confused, please make a note. Guys, here I'm going to talk about two very major things जो अगर आप क्लास 12th के लिए अपीयर कर रहे हो, आप ड्रॉपर हो, आप किसी भी क्लास में हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जेईई मेंस के लिए यार देखो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है ना आपकी प्रिपरेशन के साथ साथ भी इज एक्चुअली टेस्टिंग योरसेल्फ. एंड सिर्फ टेस्टिंग नहीं, एनालाइजिंग योर टेस्ट रिजल्ट्स ऑल्सो. ठीक है, तो कई बच्चे अभी 12th की तैयारी कर रहे हैं. आपके 12th के बोर्ड ओवर होते ही यू विल फील वेरी क्लूलेस कि बस अब 15 दिन में जेईई मेंस है, अब उसकी तैयारी तो ऐसा लगेगा जैसे बैक बर्नर पे है, अब कैसे करें. सो विद वेदांतुज टेस्ट सीरीज, राइट, सो यहाँ पे आपके 20 फुल लेंथ जेईई टेस्ट होंगे. डिटेल सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस होगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप गलती आखिर कहाँ कर रहे हो, कहाँ आपके मार्क्स कट रहे हैं, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट. एंड ऑल दिस गाइज, ये सब ना ऐसे नहीं है कि हवा में किसी ने भी आके करवा दिया.
दिस इज हैपनिंग विद द IIT एक्सपर्ट्स देमसेल्व्स। ये टेस्ट सीरीज अगर आप जाके देखोगे ना, हैज बीन डिजाइंड बाय IITians कीपिंग इन माइंड द लेटेस्ट ट्रेंड, ठीक है। सो डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हो। एंड एज आई सेड, फॉर एवरी टेस्ट अपॉन कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट होगी आपकी लाइव ऑनलाइन डिस्कशन, एंड ऑल दिस फॉर मतलब मैं क्या बोलूं, हाउ बेसिक द प्राइस इज। यस, इफ यू अप्लाई द कोड, तो अगर आप नीचे जाओगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के, आपको ये लिंक मिलेगा। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस एंड अप्लाई द कूपन कोड NAG टेस्ट, ओके, NAG टेस्ट, तो आपको ये जो दिख रहा है ना, ये प्राइस सिर्फ 1959 का दिखेगा, वेयर यू कैन एक्चुअली गो टेस्ट योरसेल्फ, ठीक है। सो डेफिनेटली बोल रही हूँ, इस मौके को मिस मत करना। कुछ करो या ना करो, टेस्टिंग इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ यू। एंड सेम वे, अगर आप लोगों को लग रहा है यार आप प्रिपेयर अपने आप से नहीं कर सकते हो, ठीक है, सो ऑब्वियसली इफ यू कैन डू ऑन योर ओन, तो वेरी वेरी वेल डन, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बट इफ यू फील यू नीड गाइडेंस, यू नीड कस्टमाइज्ड गाइडेंस, देखो यूट्यूब पे आई एम देयर, आई एम हेल्पिंग यू फॉर फ्री एंड आई विल कंटिन्यू टू डू सो। लेकिन हर बच्चे की जरूरत अलग है, किसी को लाइव क्लास देखनी है, किसी टाइम देखनी है, डाउट सॉल्विंग चाहिए, टेस्टिंग चाहिए, all that is under one roof. So you can also refer to JEE's crash course, जहाँ पे you get the live classes not only by the best teachers but the best teachers in the field of IIT, which is very important. Comprehensive testing, doubt solving, ठीक है। और अगर कुछ मिस कर जाते हो तो you can watch the replay, all the important tips and tricks, and जो सबसे बड़ी बात है ना टेस्टिंग के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस जो आपको मिलता है इस क्रैश कोर्स में, एंड अगेन एट अ वेरी वेरी बेसिक प्राइस। तो इस टाइम मैं जैसे बोलती हूँ यार, ये एक सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, 2 महीने बाद ना ये सब आपको याद भी नहीं रहेगा, लेकिन जब रैंक आएगी वो डेफिनेटली याद रहेगी, बिकॉज दैट विल बी लाइक अ गेम चेंजर फॉर यू। सो इफ यू गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इस वाले लिंक के साथ, इफ यू अप्लाई द कोड NAGCC, you get it at a very very nominal price which is 2959। जैसे कि मैं कहती हूँ, अभी आपके बोर्ड एग्जाम के बाद भी गाइस 15 दिन होंगे, तो जान लगा दो या फिर जाने दो, थिंक अबाउट इट, ओके। टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं कितने लोग इसका करेक्ट आंसर देते हैं। Okay, so if x is this and y is this, then what is dy by dx? Let's check this out. So अब देखो, पहले ध्यान से देखो यार, इसको सॉल्व करने से पहले कुछ ऑसम सा करते हैं। Suppose I try taking x square. क्यों कर रही हूँ ऐसा? So that I can get a whole square in the denominator also. Okay, so this will become 4a square t square upon 1 plus t cube whole square. ठीक है जी। तो यानी इफ आई कंपेयर, इफ आई टेक 2a कॉमन, मेरे पास क्या बच रहा है, 2at स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर, राइट। नाउ इफ यू सी गाइस, ये क्या है, ये तो ये ही है ना, इट्स द सेम। सो दैट मीन्स आई एम गोइंग टू गेट x स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay। अब देखा, बन गया हलवा, खा लो ना। फिर क्या करना है इसमें, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो, 2x इज इक्वल टू 2ay डैश, दैट मीन्स माई x इज इक्वल टू ay डैश। बाय द वे द क्वेश्चन इज डन, प्लीज मेक अ नोट, ओके। तो अगर यार y डैश पूछा था, करेक्ट 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 करेक्ट, सही बोला। सो y डैश पूछा था तो वी हैड टू गेट x by a फॉर्मेट, प्लीज मेक अ नोट। एंड नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। पहले मैं नहीं देखने दूंगी, नो 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 नो, यू कांट सी द क्वेश्चन। फर्स्ट यू हैव टू लाइक द वीडियो इफ यू जस्ट ज्वाइन, क्योंकि इतना तो बनता है बॉस। अच्छा चलो, नाउ स्टार्ट सॉल्विंग। बाय द वे दिस इज द सेम एज योर सिंपल एक्स ओनली। Okay, so it is given to be continuous at x equal to 0. Find the value of k. तो यानी k, this is what I have. यार अब ये आपका NCERT का बहुत ही सिंपल वाला क्वेश्चन है। क्या? You know sin of 1 by x will oscillate between, basically इसकी रेंज क्या होती है बॉस, -1 to 1. So now this finite number
इफ आई मल्टीप्लाई विद क्या, टेंडिंग टू 0, मतलब आपका fx में क्या है x, so 0 into a finite number is going to give me a 0, तो यानी k हो गया 0. प्लीज नॉट डिफाइंड मत लिख के आना, दिस इज द क्वेश्चन. ओके, टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 18. चलिए बजाएं इसकी बीन. ऑलराइट, लेट्स रीड दिस. फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन हो गया, वेरी नाइस, between a and b so that the function is defined by this. ठीक है, is continuous at x equal to 3. मतलब यार देखो 1 मार्कर है तो सीधा सीधा लिख दो, आप स्टेप्स खा सकते हो जितना खाना चाहते हो. सो यानी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 फ्रॉम द लेफ्ट साइड शुड बी द सेम एज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 फ्रॉम द राइट साइड, एंड इक्वालिटी तो इंक्लूडेड ही है. सो यहाँ से आ जाएगा सीधा सीधा आपका 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3. ठीक है, सो दैट मीन्स थ्राइस ऑफ a माइनस बाय b इज इक्वल टू 2, यानी a माइनस b इज 2 बाय 3. वॉट अ हलवा क्वेश्चन यार. इस वाले बात पे तो ये बनता है कि नहीं? प्लीज मेक अ नोट. ओके, टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 19. यू जस्ट हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर dy बाय dx. तो बीच में मत छोड़ना, dy बाय dx तक निकालना. ऑल राइट, सो क्या करना है, बेसिकली जस्ट डिफरेंशिएट करना है. सो दिस विल बी 2/3 x रेज टू पावर 2/3 माइनस 1, मतलब दिस सेम चीज यहां है ना, इज इक्वल टू 0. ऑल राइट, सो 2/3 गया तो y डैश क्या हो जाएगा आपका माइनस x अपॉन माइनस 1/3 अपॉन y रेज टू पावर माइनस 1/3, यानी कि आपका बेसिकली ये आने वाला है आंसर. ओके, दैट्स इट, द क्वेश्चन इज डन. ऑलराइट, टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 20. इसके बाद हमें अपना स्कोर लिखना है कमेंट बॉक्स में. कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं? तो वीडियो को आई होप लाइक कर दिया है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है. ओके, सो क्या करना है यहाँ पे, ये तो यार बहुत ही सिंपल हो गया है ना. क्या हो गया यहाँ पे, क्या से क्या हो गया, ये देखो क्या हो गया. दिस विल बी सिंपली cos of x/2, यानी कि x/2. नाउ इफ यू हैव टू डिफरेंशिएट द आंसर इज 0.5 हाफ. दैट्स इट. अगर आज की वीडियो में आ गया है मजा, देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन right here right now. Share it with people around you. फटाफट ईमानदारी से लिख दो कमेंट सेक्शन में आपका स्कोर क्या हुआ. सब्सक्राइब टू वेदांतु मैथ, इज एब्सोल्युटली फ्री. ऑल्सो अगर अभी तक वेदांतु मैथ के टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो जुड़ो ना यार. द लिंक यू कैन फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यहाँ पे आपको मिलेगी मेरे सेशन की सारी फ्री PDFs. ऑल्सो यू गेट नोटिफाइड ईच टाइम आई एम ऑनलाइन. एंड अगर ये नहीं किया गाइस तो क्या कर रहे हो अब तक. आखिर गूगल ने दिया है हमें यूजर्स चॉइस अवार्ड, तो कुछ तो होगा ना बॉस. एब्सोल्युटली. तो प्ले स्टोर जाओ, जल्दी से वेदांतु के लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लो. एंड कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग. टिल देन, सी यू गाइस सून. बाय बाय.